कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. Hi, my name is Arushi Sabharwal. In the recently declared results of JKAS 2021, I secured 13th rank. It was my second attempt with geography as my option. So today, through the help of Delhi Knowledge Tracks medium, I would like to discuss about my whole journey and how I made it possible in my second attempt. So talking about my basic qualification and my upbringing, I was born and brought up in Jammu. I did my basic schooling from KC Public School, Jammu. Thereafter, I pursued my Bachelor's of Engineering in Electronics and Instrumentation. I always wanted to be a civil servant right from my childhood. And my mother had helped me to get inclined towards this field. And when I was in last year of my college, I decided that I would definitely pursue this dream. So I left the dream of going for a multinational corporation. And I got a lot of opportunities to work in various fields of engineering, although my dream was always there to come towards the civil services. So in 2018, I gave my first attempt. And in that attempt, I could not qualify the preliminary stage itself. And secondly, for the second attempt, I appeared in 2021, and this was my serious attempt, and I qualified the preliminary. I reached the main stage, and I was confident to see my name in the interview list, and then finally I cleared the whole examination with the 13th rank. So I think one thing which I realized from my first to the second attempt was that I was not very clear that why I really wanted to be in the civil services. Therefore, that why part was missing. So it becomes very important, all the people who are listening me today, that you must be clear that why you want to come towards this civil services. Because at the end of the day, the kind of pressure which you're going to feel, in all these years of your journey, can actually become very tedious. और कई बार ऐसा भी लगेगा कि you can't do it. But when your why is very clear, only then it would be possible कि आप ये सारा प्रेशर ले पाएँ. तो इसलिए आज मैं यही आप सबको कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 फोकस कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, आखिर कारण क्या है. और कारण सबका अलग अलग रहेगा. किसी का कारण हो सकता है कि he or she wants a prestige in the society, he or she wants to do public service, और कुछ लोगों का ये भी होता है he or she wants a good spouse in life. So there is no problem with that. आप कोशिश करिए अपना वाई पे जाने के लिए, बाकी आपकी जर्नी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी. सो कमिंग ऑन दी रिसोर्सेज, जो अक्सर बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि रिसोर्सेज क्या लेंगे इस पूरी जर्नी के लिए, तो मैं कहूँगी कि रिसोर्सेज के लिए सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप पूरे एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से समझें. बिकॉज़ मैंने अक्सर ये देखा है कि बच्चे एग्ज़ाम को समझने के बिना एग्ज़ाम अटेम्प्ट भी करते हैं और ये सोचते हैं कि जो वो कोचिंग में पढ़ रहे हैं या जो भी वो वीडियोज़ में देख रहे हैं वो सारा रेलेवेंट है एग्ज़ाम के लिए. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर आप कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट यू एनालाइज द एग्ज़ाम. एंड द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड और एनालाइज द एग्ज़ाम इज़ टू अंडरस्टैंड द सिलेबस. And after understanding the syllabus, it is also important that you really understand what is being asked in the question paper. So here comes the role of the previous year question papers. So both for the, I would say, the preliminary as well as for the mains, analyze all the previous year question papers. और ये यकीन मानिए कि यूपीएससी या जेकेपीएससी या कहीं का भी सर्विस कमीशन आपसे एक कदम आगे चलेगा. तो आपको भी उसके साथ पैरेलली चलना है बाय एनालाइजिंग ऑल द क्वेश्चन पेपर्स. तो अगर बेसिक रिसोर्सेज की बात करें आफ्टर द एनालिसिस ऑफ द सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो मैंने 6 से लेकर 6ठी से लेकर 12वीं तक की सारी एनसीईआरटीज़ की किताबें मल्टीपल रिविजन्स के साथ पढ़ ली थी. तकरीबन मैं कहूँगी 4 से 5 रिविजन्स मैंने की थी. और इनफैक्ट ज्योग्राफी, जो कि मेरा ऑप्शनल है, मैंने तकरीबन 7 से 8 बारी पढ़ी थी.
तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जितना भी टाइम है आप मिनिमम 3 रिविजन्स तो बिल्कुल करिए। अगर आप और ज़्यादा अटेम्प्ट्स दे रहे हैं तो 5 से 6 रिविजन्स आपकी होनी चाहिए, क्योंकि दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट हाउ एफिशिएंटली यू नो एवरीथिंग। तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपनी एनसीईआरटीज़ को मल्टीपल रिवीजन करिए। तो जब आप मल्टीपल रिवीजन करते हैं आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पता लगते हैं हर रिवीजन के साथ। सो वंस यू आर डन विद दिस बेसिक थिंग, आफ्टर दैट आप कोशिश करिए जो अदर हाई रेफरेंस बुक्स होती हैं, जैसे कि पॉलिटी के लिए एक बहुत फेमस किताब है लक्ष्मीकांत के नाम से, जो कि आई वुड से इट्स अ ब्रिलियंटली रिटन किताब, जो इस एग्ज़ाम के स्कोप के हिसाब से ही लिखी गई हुई है। प्रीलिमिनरी के लिए भी और मेंस के लिए भी बहुत अच्छी है। उसके अलावा मैंने और कोई किताब नहीं पढ़ी थी, लेकिन जो इसकी 11th-12th की जो एनसीईआरटी आती है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो मैंने बहुत ध्यान से पढ़ी थी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इकोनॉमी की, इकोनॉमी के लिए जो एनसीईआरटी है वो 9वीं से लेकर 12वीं तक होती है। 9वीं से ही स्टार्ट होती है 9th स्टैंडर्ड से। उसके अलावा आई ऑल्सो रेफ़र टू एन ऑनलाइन सोर्स जिनको मृणाल पटेल नाम के एक सर हैं जो बहुत अच्छा इकोनॉमी पढ़ाते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स अवेलेबल हैं फॉर एवरी स्टूडेंट, तो मैंने वो पढ़ी थी। उसके अलावा एक मार्केट में नोट्स है श्री राम आईएएस करके, तो मैंने उनके नोट्स रेफ़र किए थे। साथ ही साथ मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ती थी एंड आई ऑल्सो रेड द इकोनॉमिक सर्वे एंड द बजट फॉर दैट। आफ्टर दैट अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री इज़ वन सच सब्जेक्ट जो काफ़ी ड्राई लगता है बच्चों को। तो मेक श्योर हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करें। मैंने एनसीईआरटी तक ही रिस्ट्रिक्ट किया था, उसके अलावा मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ी थी। मैंने बिपिन चंद्र किताब भी अलग से नहीं पढ़ी थी, जो एनसीईआरटी में अवेलेबल थी मैंने वही पढ़ी थी। लेकिन हाँ, एक मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी किताब आती है चुटकू सी, स्पेक्ट्रम नाम से, तो बहुत अच्छी किताब है। तो मैं कहूँगी कि वो इतनी इंटरेस्टिंग है, वो बिल्कुल नोट फॉर्मेट में एक ऑलरेडी एक जो सिविल सर्वेंट हैं उनके द्वारा लिखी गई किताब है ये, तो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ये बुक। तो आफ्टर गोइंग थ्रू मल्टीपल रिविजन्स ऑफ योर एनसीईआरटी यू मस्ट रीड दिस स्पेक्ट्रम। तो उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कल्चर का, जो इसके लिए हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। तो कल्चर के लिए मैं कहूँगी कल्चर वुड बी अंडरस्टूड ओनली व्हेन यू आर वेल वर्स्ड विद योर हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट्स। So while you're reading the NCERTs of all the history books, you will realize कि culture उसका पार्ट ही है। अगर आप मान लीजिए एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एंशियंट का जितना भी कल्चर आएगा, मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई कल्चर है या चोला स्कल्पचर्स कोई हैं, सो यू वुड बी डीलिंग देम साइमल्टेनियसली। लेकिन एक अलग से भी अगर आपको पैरेलली कल्चर पढ़ना है तो आप एक 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की किताब आती है पिंक कलर की, जो कि मैं कहूँगी बहुत अच्छी है। पिक्टोरियल उसमें बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, मैप वर्क उसमें बहुत अच्छा है, तो आप ये जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक और किताब आती है मार्केट में नितिन सिंघानिया के नाम से। वैसे तो मैं कहूँगी कि नितिन सिंघानिया पढ़ने से पहले आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आपको कुछ वक्त मिलता है तो आप जो स्टार्टिंग के 5-6 चैप्टर्स हैं आर्किटेक्चर पे, टेम्पल आर्किटेक्चर पे, पेंटिंग्स पे, म्यूज़िक पे, तो आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ऐसे तो वो किताब बहुत अच्छी है, लेकिन अगर एक ऐसा बच्चा जो डायरेक्टली उस पर जंप करेगा और एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ेगा, सो फॉर दैट पर्सन इट माइट गेट अ बिट ऑफ कन्फ्यूजिंग, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ हुई थी। तो आप ये चीज़ पहले अवॉइड कर सकते हैं, बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। बट स्टिल आई वुड से दैट एनसीईआरटीज़ वुड सफाइज ओनली विथ फ्यू मोर चैप्टर्स ऑफ नितिन सिंघानिया। तो ये तो हो गई कल्चर की बात। अब इसके अलावा अगर हम बाकी टॉपिक्स की बात करें, जैसे एनवायरनमेंट आ गया है, क्योंकि एनवायरनमेंट का आजकल बहुत ज़्यादा वेटेज बढ़ चुका है, खासतौर के यूपीएससी पे, क्योंकि हमारा आईएफएस एग्ज़ाम भी जो है अब इसका पार्ट बन चुका है प्रीलिमिनरी का। तो इसीलिए आप एनसीईआरटीज़ जो एनवायरनमेंट की आती है अब उनको पढ़िए। उसके अलावा यू शुड फोकस ऑन देयर इज़ अ वेरी फेमस बुक शंकर आईएएस नाम से किताब है, बहुत अच्छी है। आप चाहें तो उसको पेज बाय पेज नहीं भी पढ़ें, तो आपको जो भी रेलिवेंट टॉपिक्स लगते हैं आप वो पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और साथ ही साथ एनवायरमेंटल इशू जो करंट चल रहे हैं उनके साथ भी वेल वर्स रहिए। अब बात आती है ज्योग्राफी की, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था, तो मैंने एनसीईआरटी 8 बारी पढ़ चुकी थी मैं। तो मैं कहूँगी ज्योग्राफी इज़ वन सच सब्जेक्ट जो आप एनसीईआरटी से ही सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी उसकी इतनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और इतनी ज़्यादा एनसीईआरटीज़ हैं, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ अदर रेफरेंस बुक्स। लेकिन बच्चे फिर भी पढ़ते हैं, तो यही हम गलती करते हैं कि हमारे पास इतनी अच्छी एनसीईआरटीज़ हैं, उसके बावजूद भी हम मार्केट से और सारी नोट्स और किताबें ले लेते हैं। अगर आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पढ़ेंगे, एक एटलस खरीद लीजिए बाज़ार से,
और रोज़ आपको जो भी नई नई जगहों के नाम दिखते हैं उनको मैप पे एक बार ही देख लीजिए, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। एक मैं बोलूँगी, एक एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक है केवल, जिसको हम जीसी लियोंग कहते हैं। तो जीसी लियोंग के कुछ लास्ट के चैप्टर्स हैं बायोम्स का, कि मतलब किस वर्ल्ड में किस तरीके की वेजिटेशन, किस तरीके की प्रेसिपिटेशन, किस तरीके का फ्लोरा फौना है, वो बहुत अच्छे से डिफाइंड है। तो यू कैन ऑल्सो परचेज दिस स्मॉल वेरी क्यूट बुक। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर बेसिक GS थिंग्स। इसके अलावा अगर मैं मेंस के लिए बात करूं, तो मेंस के लिए ऑलमोस्ट किताबें यही हैं, लेकिन कुछ कुछ एक्स्ट्रा किताबें आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप सिक्योरिटी की बात करें, तो सिक्योरिटी के लिए किताबें आती हैं। एक IPS ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है इंटरनल सिक्योरिटी पे, अगर आप वो पढ़े तो ठीक है। अगर आप नहीं भी पढ़े तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल मिल जाएंगे। आपको करना यही है, जो भी टॉपिक का नाम लिखा है सिलेबस पे, आपको एग्जैक्टली वही सर्च मारना है गूगल पे, और आपको उसकी काफ़ी अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। तो आई वुड से दैट दिस इज़ नोन एज योर स्मार्ट वर्क, कि आप सिलेबस टू द पॉइंट वो सर्च मारिए और एक पेज का एक नोट मेकिंग ज़रूर कर लीजिए। सिमिलरली अगर आपको कोई और टॉपिक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, अगर आपने अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो आपको डेफिनेटली डिज़ास्टर मैनेजमेंट इट विल लुक वेरी इजी, राइट। सो मेक श्योर आपकी जो बेसिक चीज़ें पहले हो जाए NCERT वाली, उसके बाद ही जो है आप GS मेंस की एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें जो बाकी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे से, जैसे सोसाइटी हो गया, तो सोसाइटी आप जब रोज़ न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कोई केस चल रहा है, ट्रिपल तलाक का केस चल रहा है, साबरीमाला का केस चल रहा है, या मॉब लिंचिंग का केस चल रहा है, तो आपको रोज़ नए नए किस्से पता लगते रहते हैं। तो इनके साथ वेल वर्स रहिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए। और क्योंकि अब आप एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, आपका हर एक चीज़ का एक नज़रिया बनना चाहिए। तो न्यूज़पेपर में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसे एक एडमिनिस्ट्रेटर के नज़रिए से सोचें, एक आम इंसान के नज़रिए से नहीं कि मैं इस रिलीजन को बिलोंग करता हूँ तो मैं इस नज़रिए से सोचूंगा। बिल्कुल नहीं, आप एक सिविल सर्वेंट है, आपको दैट्स ओके, आपका पर्सनल रिलीजन या पर्सनल आइडियोलॉजी कुछ हो सकती है, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर की जो आइडियोलॉजी है, इट्स ऑल अबाउट सर्विस। So think about how you can make sure that people, they get their rights, they are more aware and they get all their welfare. तो इसलिए start thinking like that from day one. तो यही सोच जो है आपको आगे लेके जाएगी, यही सोच जो है आपकी मेंस में भी काम आएगी, और यही सोच जो है वो आपको इंटरव्यू में भी काम आएगी। और दिस इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, जो डेवलप होगी विद रीडिंग, मल्टीपल रीडिंग्स। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक UPSC रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली IAS के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. उसके अलावा अगर हम एक और सब्जेक्ट की बात करें, वो है एथिक्स, और वो मैं कहूँगी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। एथिक्स, नैतिकता का सब्जेक्ट, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि झूठ नहीं बोलिए, सच बोलिए, जैसे गांधी जी के 3 बंदर। तो ये चीज़ें आपको फिर से पढ़नी है, लेकिन और रिफाइंड वे में। तो इसके लिए मैं कहूँगी कि इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बायोग्राफी पढ़ी थी महात्मा गांधी जी की, माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ। मैं कहूँगी ये किताब बहुत अच्छी है। इसमें उन्होंने अपने सारे जो राज लिखे हैं कि वो किस तरीके के बचपन में वो इंसान थे, और किस तरीके से उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया, कि मतलब अगर वो बचपन में उन्होंने कभी चोरी की, लेकिन उससे उन्होंने क्या सीखा, और आगे जाके वो देश के सबसे बड़े महान स्वतंत्रता सेनानी बने। तो ये किताब मुझे लगता है बहुत अच्छी, अगर आप एथिक्स को वाकई समझना चाहते हैं। इसके अलावा और भी अगर आपके पास वक्त है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हैं, जो ग्रेट लीडर्स हैं उनके बारे में, अब्दुल कलाम जी के बारे में, या जो भी आपके फेवरेट है आप उनके बारे में बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो जब आप ये पढ़ लेते हैं, आपको थोड़ा एक मॉरल कॉन्साइंस आपका जागता है। उसके बाद आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस जैसी जैसी टर्म्स लिखी हैं वैसे वैसे मैंने आपको बोला, आप गूगल कीजिए और इन टर्म्स को जो है अपने पास रख लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, थोड़ा काम आसान करना चाहते हैं, तो मार्केट में बहुत अच्छी किताबें और नोट्स भी मिलते हैं। तो मैंने जो है एक लेक्सिकन नाम से किताब आई थी छोटी सी, तो मैंने वही पढ़ी थी, और वो ऑलमोस्ट आई वुड से दैट सफाइज्ड इट ऑल।
बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जाम्पल्स इकट्ठी करनी है, वो किताबों में नहीं मिलेंगी, वो आपको रियल लाइफ में मिलेंगी। मान लो अगर आपको कोई बात करता है कि कंपैशन की एग्जाम्पल दीजिए, अगर आपके घर में बहुत सारी कंपैशन की एग्जाम्पल्स होंगी, या आपने आसपास कुछ देखा होगा किसी ने कुछ एक ऐसा काम कर दिया किसी अगले इंसान का दर्द कम करने के लिए, सो यू कैन डेफिनेटली राइट दैट एग्जाम्पल फ्रॉम योर रियल लाइफ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एथिक्स एग्जाम। तो ये सब हमारे हो गए जीएस के कॉम्पोनेंट्स। उसके बाद एक जो आपका ऐसे का एग्ज़ाम है, मुझे लगता है ऐसे की एग्ज़ाम की तैयारी भी स्पेसिफिक होती है। तो ऐसे के लिए आजकल फ़िलोसॉफिकल एसेस काफ़ी आ रहे हैं, तो कोशिश ये करिए कि ऐसे के लिए स्पेसिफिकली आप अपने पास काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स रखिए, काफ़ी ज़्यादा कोट्स रखिए, और किसी भी टॉपिक को चुनने से कम 15 से 20 मिनट उसका एक रफ वर्क थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग बिल्कुल करिए। तो उसके अलावा मैं यही कहना चाहती हूँ कि कीप प्रैक्टिसिंग, कीप राइटिंग, बिकॉज दिस एग्जाम इज़ ऑल अबाउट राइटिंग एट द एंड ऑफ द डे। एग्जामिनर वोंट बी नोइंग what is your identity, what is your gender, what is your qualification. All she or he knows is that what is written in this piece of paper, in this piece of booklet. So ये अब आप तभी अच्छा कर पाएंगे जब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। फाइनली एक क्वेश्चन और पूछ रहे थे बच्चे कि ऑनलाइन रिसोर्सेज लें या ऑफलाइन। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ, so I am an old school person who really believes in the traditional way of life. So I was usually cut off from much of the technology part. I used a very basic keypad phone, that old Nokia phone which has no camera, only a torch light, और जो बहुत ज़ोर का वाइब्रेट करता है, so that I was I was not much deviated from my focus. तो मैं केवल उसको टेक्सटिंग के लिए और कॉलिंग के लिए यूज़ करती थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि मैं बैलेंस नहीं कर पाती थी माई सोशल मीडिया एंड माई स्टडीज़। तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं बैलेंस स्मार्टफोन के साथ, तो करिए। नहीं कर सकते तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दैट फ़ोन। और मैं ये भी कहूँगी कि आईफोन और सिविल सर्विसेज की तैयारी साथ में नहीं हो सकती, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो अगर आपको शौक़ है आईफोन का और सिविल सर्वेंट भी बनना है, तो उसको 1-2 साल के लिए आप थोड़ा सा उसको स्टॉल कर लीजिए और कोशिश कीजिए फ़िलहाल इसी की तैयारी में आप रहिए, फिर आप ले सकते हैं बाद में स्मार्टफोन। लेकिन हाँ, आप लैपटॉप और टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ मच अ बेटर ऑप्शन रादर दैन अ स्मार्टफोन, क्योंकि स्मार्टफोन में डिविएशन होती है। तो ऑफलाइन किताबों का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन कहीं-कहीं जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे नहीं मिल पा रही है मार्केट में, तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ ऑनलाइन रिसोर्स। क्योंकि आजकल तो बच्चे ऑनलाइन इंटरव्यू भी दे रहे हैं, मॉक इंटरव्यूज़, एंड दैट्स ऑल्सो वेरी ग्रेट एडवांटेज। तो मेक श्योर कि आप जो आपको सबसे प्यारी चीज़ अभी लगती है, आपकी फ़ोन होगी या कुछ भी, उसको आप सैक्रिफाइस करिए। अगर आप सैक्रिफाइस कर देंगे, आई एम टेलिंग यू, यू आर ऑलरेडी अबाउट 90% आप सिविल सर्वेंट बन चुके हैं। तो दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू से। बाकी लास्ट में मैं यही कहूँगी थ्रू दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से कि थैंक यू सो मच इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए स्टूडेंट्स के लिए। एंड सबसे बड़ी बात है दैट इट हैज़ बीन फाउंडेड बाय अ वुमेन, विच इज़ अगेन अ वेरी प्राउड मूवमेंट। और सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगी कि बिलीव इन योर सेल्फ, बी कंसिस्टेंट, एंड इसमें फेलियर्स बिल्कुल रहेंगे। मुझे बहुत फेलियर्स रहे यूपीएससी में, अगेन आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट। तो पर इस सोच के साथ नहीं कि बहुत सारे फेलियर्स हैं, इस सोच के साथ कि उन फेलियर्स से बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं जो मैं फाइनली नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो रिपीट नहीं करूँगी। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।